इम्पोर्टेंट। तो आप सोच लीजिए उस थॉट जो थॉट आपने लिखा है, द वर्ड विच टच्ड यू और विच यू फील। एक बार पढ़ के सुना दीजिए सर, और उसमें कौन सा वर्ड जो आपको लगता है कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर। is the best of friends, the same friend forever. ये पूरा वर्ड से मेरे लिए बेटा है ये। अच्छा, पूरी सेंटेंस ही सही है सर। योर नेम? आपको रिकॉर्ड कर रही है, हम छोड़ दें। सर आप आपके मेरे से अभी कीजिए ना, क्या दिक्कत है? हम तो मेरा हैबिट हम लगा के कुछ व्हाट यू हैव रिटन? ये तो हम अपना लगाए सर, आप अपना लगा। सर कौन सा वर्ड है उस थॉट में जो आपको लगता है कि इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट? देख लीजिए यही है विस्तार। अच्छा, ओके। चाहिए फ्रॉम दिस साइड मैम, व्हाट यू हैव रिटन सर, प्लीज सिट डाउन। is the best of the friends, the same and quality. व्हाट अ गुड A good book is the best of friends, the same today and the quality. same today and forever. Okay sir, Silence is one great art of conversation. very good. Silence is one art of conversation. Or silence is very important in this thought. Okay, silence is very much important in this particular thought what you have written. Yes. Sir, why do you think that silence is very much important? Yes, our former Prime Minister, which have passed away just now, Dr. Manmohan Singh, who is always known as he the person, he the learned person, even if he speaks very a little. Means if we remain silent, we He can remains silent even if he know very well everything about our society, either economics, Means politics, even if all the things whatever essential for a politician. So whenever he talks about any issues, or at that time leader of opposition Mrs. Sushma Swaraj asked, I want to know what is the silence of our Prime Minister. So he replied, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो, मेरी खामोशी में हजारों सवालों का उत्तर है। Okay, बहुत अच्छा सर, thank you. Silence is the answer of many questions. That's all. Okay, thank you sir. एक कहावत है कि बोलना अगर सोने के समान है तो चुप रहना और सुनना चांदी के समान होता है। हाँ, because maintaining silence we can hear the things very clearly. We can put our 100% effort on attentiveness. That is why the silence is here. For what purpose we are here? Here the meaning of silence is not only to listen. Here the meaning of silence is you have to be very much attentive what the teacher or the resource person, what he or she is sharing, what other participants are sharing. For that purpose you must be silent but active to listening. Okay, so today as you have gone through, आप सर गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा अपने जो शेड्यूल शेयर हुआ है. In that schedule I have the first session. As you all know, I am Mr. Deepak Kumar Jha from DAV Public School Sergati, and the topic what I selected, it is framing multiple choice question, MCQs. Several times we see, how many of you are teaching class 10 also sir? Ma'ams, please raise your hand. Okay, means as we are here for middle sections only, I want to know only how many of us are there those who teaches in class 10 also. Okay, leave it. For class 8, this time pre-board has already over. We have seen some questions are pre-board is going on. First pre-board is over. Okay. In some of the schools it is to be held. Okay, no problem. In some schools it is to be held. Okay, but in our zone it is over. That is why I am telling this. So we have gone through the question paper, or if you are preparing the question paper for the same, the pre-board which is coming, or for the different periodic tests what you have already taken in your school, in your class 6, 7, 8, you have given some questions of MCQ type. Yes or no? Yes sir. So we all are master in framing MCQs, in making MCQs.
Then also we are here to brush up what things we should avoid or what things we should add while we are going to frame the MCQs or multiple choice question. Okay, so let us begin. Sir, here is a question, and question is, what is a question? Here is a question on the board, and the question itself is, what is a question? What's your answer, sir? Suman Jha, sir. What's your answer? What is a question? There may be different perspective of answering the question. हो सकता है ना कि आपके हिसाब से क्वेश्चन कुछ और होता हो, हमारे हिसाब से कुछ और होता हो. क्या सर क्वेश्चन क्या होता है? ये किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएट करने का एक जरिया है. क्वेरी कर सकते हैं सर. प्रॉब्लम को नहीं सर ने भी सही कहा है, किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएट करने का एक जरिया है. यस ऑफ कोर्स, because नेगेटिव क्वेश्चन. because we are the teachers and our duty is to ignite the mind of the students, not only to provide the answers. Very right sir, आपने सही कहा है, प्रॉब्लम क्रिएट करने का एक जरिया है क्वेश्चन. आपको अगर ये बात सर प्लीज अगर आपको ये टेस्ट करना हो कि whether your students have got the concept what you taught or not, create a problem. जो सुमन झा सर ने कहा, it's very right, create a problem. Yes, sometimes it happens that a student ask question beyond your syllabus. So that its motto is that he wants to create problem with you. Okay, sir. This is different. This is different scenario. I will come to this. If the student is asking a question beyond the limit, that is different scene. It depends upon us कि how much, to what extent we are leaving the students to ask the question. If you are leaving them to that extent that they can ask a question of HOTS, higher order thinking skills, it's okay. Then also he or she should be welcome क्योंकि उसने उस question को पढ़ के, उस topic को पढ़ के HOTS का idea उसके दिमाग में है कि that question also should be there. What we tell nowadays competency based questions. मैम, competency, higher order thinking skills, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका आगे उसको कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, उसके आगे क्या हो सकता है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. ये तो ठीक है. अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई थिंक, a question is a request for information and question is asked in an attempt of better understanding of topic, concept, thought or decision. What I think, जिसलिए मैंने ये बनाया है टॉपिक आपके लिए, आपकी मदद के लिए या मेरी भी मदद के लिए कह लीजिए, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन के जरिए हम लोग गेस कर पाते हैं कि व्हाट टॉपिक आई हैव डिलीवर्ड इन द क्लास, हाउ मच द स्टूडेंट्स गॉट दिस. और जो मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, आर द स्टूडेंट्स रीच्ड टू दैट लिमिट और नॉट. जैसे हमने लिखते हैं ना एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू दिस. Are they able to do this after your delivery? If they are able to do such things, if they are able to do... Good morning. Good morning, sir. Sir, can I continue? Yes. Okay. So, what the objective you have set while framing a lesson plan or while preparing a lesson plan? By asking a question, you can have the idea that how much extent the students reached or how much extent your objective is furnished or achieved. Okay, so that is what a question is, a request for information, and question is asked in an attempt of better understanding of topic, concept, thought or decision. Why to ask questions? अभी मैंने पूछा कि what is a question? एक सर का रिप्लाई था कि it is to create a problem. Somebody said it is to solve a problem. Why to ask the question? To get information about the... To get information. Generally what we do in our class, the questions are asked, I already told, the questions are asked to have the idea that how much, up to what extent the students have got the knowledge what you have delivered just now. Previous knowledge. To understand their previous knowledge also. Yes, in the lesson plan, the first thing is
when you introduce a lesson, you test their previous knowledge. That is also one of the way of question. So why ask questions? Question can diagnose students' understanding of material, what you are going to deliver, previously to what extent they are familiar of that particular topic. Questions are a way of engaging the students to keep their attention and to reinforce their participation. It is one of the way to engage the students also in active learning. Active learning means whatever you are delivering, are they getting or not? There are different types of questions that we cover in next session. But the questions we ask to the students to have the idea or to engage the students with their attention. Questions can review, restate, emphasize, summarize what is important. Questions stimulate discussion. When we ask the question, suppose we framed a group in the class of 3 or 4 students and gave them a question. It stimulate the discussions among the students की आंसर क्या होगा, सर ने किस लिए पूछा है, मैम ने किस लिए पूछा है. So it stimulates discussion also, creative and this stimulation leads to the critical thinking. Critical thinking, yes, that is what I have given. Creative and critical thinking, as well as determine how the students are thinking. Are they thinking positive or negative or something else? What you have given the problem as a question, in which way they are thinking. Questions help students retain material by putting into words otherwise. Words जो हम लोग रखते हैं, उस वर्ड से क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, बच्चे वहां भी उसको भी यूज कर सकते हैं. नाउ रोल ऑफ गुड क्वेश्चंस. टॉपिक इज फ्रेमिंग एमसीक्यूज. तो जब हमें एमसीक्यूज बनाने को दिया जाता है सर या मैम्स, तो हम लोग एमसीक्यूज तुरंत डिजाइन कर लेते हैं. इफ आई हैव टू मेक 20 एमसीक्यूज तो मैक्सिमम 40 सेकेंड्स, sorry, for 20 minutes or 40 minutes. 40 minutes. Okay. What to do? Simply give a question, give the stem and give the distractors. Out of that distractor, one should be the correct option. लेकिन अभी हम लोग जानेंगे सर कि MCQs या मैम्स की MCQs जो हम लोग फ्रेम करते हैं, what is the right way, what should be kept in the mind while framing MCQs. So before going to this, रोल ऑफ गुड क्वेश्चन इन एन असेसमेंट. अगर आपने क्वेश्चन सही फ्रेम किया है तो क्या मदद मिलेगी आपको. गुड क्वेश्चंस आर सेंट्रल टू एनी गुड असेसमेंट. हम लोग जब भी असेसमेंट की बात होती है, द फर्स्ट थिंग कम्स इन द माइंड आर द क्वेश्चंस. बाय पुटिंग क्वेश्चंस वी कैन असेस द स्टूडेंट्स. सेकेंड इज द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ इनसाइट्स वन कैन डेराइव. यहाँ दो बातें हैं सर. क्वेश्चन जो हम लोग बनाते हैं वो सिर्फ बच्चों को ही टेस्ट नहीं करते, वो हमें भी टेस्ट करते हैं. हमने अगर क्वेश्चंस लिखे तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो मैंने लिखा है, हाँ या नहीं. मानते हैं इस बात को कि हम लोग जिस लेवल तक जा सकते हैं, चाहे वो इजी लेवल हो, एवरेज लेवल हो, डिफिकल्ट लेवल हो, वाइल फ्रेमिंग अ क्वेश्चन हम लोग उस चीज़ को कॉपी पर रखते हैं या पेन पर रखते हैं, अपने मोबाइल में टाइप करते हैं, अपने लैपटॉप में टाइप करते हैं व्हाट वी हैव इन. ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड. सो दैट इज व्हाट अ गुड क्वेश्चन इज वन दैट चैलेंजेस एंड स्टिमुलेट्स अ लर्नर टू थिंक डीपली एंड अप्लाई कॉन्सेप्ट्स. बट अब चीज़ें येस और नो, ट्रू और फॉल्स वाली नहीं होनी चाहिए. अब हम लोगों को बच्चों को अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ले जाना है, जिसमें उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेशन, जो अभी हम लोगों ने जस्ट नीचे सुना, दीज आर वन ऑफ द वैल्यूज, जो कहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं अपने नॉलेज को. इस चीज़ को लाने के लिए आपको क्वेश्चन उस तरह का डिजाइन करना पड़ेगा विच स्टिमुलेट्स अ लर्नर टू थिंक. नॉट सिंपली कि एमसीक्यूज. बच्चों को लगता है एमसीक्यूज आर द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन. एमसीक्यूज आएंगे तो दे डू नॉट टेक एनी वरी. इफ यू अनाउंस कि नेक्स्ट टेस्ट विल बी ऑफ एमसीक्यू टाइप, कोई टेंशन नहीं बच्चों को. एमसीक्यूज हैं तो ऑप्शंस तो मिल ही जाने हैं. तो फिर वो पूछते हैं ना. हाँ सर, सीटेट के एग्जाम में जो लोग सीटेट के एग्जाम का अपियर हुए थे उसमें अक्सर ये प्रॉब्लम था कि दो ऑप्शंस बहुत रिजेंबल करते थे. व्हिच वन इज द राइट वन, वी कुड नॉट डिफरेंशिएट. तो जो जिसको ये इतना टेक इट इजी लेते हैं, उनको ये समझाने के लिए और उनके अंडरस्टैंडिंग स्किल और एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए प्रॉपर एमसीक्यू फ्रेमिंग बहुत ज़रूरी है. ओके,
Thank you, ma'am. A good question correctly framed can help a teacher understand how a student thinks. आप क्वेश्चन से ये जान सकते हैं कि बच्चा क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, and how well a student has internalized a concept or mastered a skill. और अगर क्वेश्चन अगर सही है, अच्छा है, तो it helps the teachers, it helps us. अभी जो मैंने शुरू में कहा था कि to have the idea up to what extent they got the concept. क्योंकि हमारी सक्सेस तो उसी में है कि बच्चे को जो हमने सिखाया, जो हमने टॉपिक डिलीवर किया, उसको किस एक्सटेंट तक बच्चों ने समझ लिया. ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चन. नहीं उधर सामने वाले ब्लॉक से आ रही है. कॉल कीजिए ना कि उधर उनका वो फील्ड वाला माइक ऑफ करवा दें. ये पांडे सर एक बार बोलिए उधर से माइक. तो जो चीज़ और अगर एक के हो तो और अच्छी बात है. और ग्लू वगैरह है, वाइट शीट भी है और नहीं टूथपिक कैसे. लिसन लिसन I have टू written, बोल sir, सर. what is the main reproductive part of a plant? हां, Of a ऑप्शन. plant. Options are A. तो Sepal, नहीं हमारे B. पास नहीं stalk, आए हैं. C. ये हम pistil, लोग के ग्रुप D. में कहीं flower. पर भी नहीं है. अब अगर पर्सनल आया Sepal, stamen, pistil, flower. The question is what is the male reproductive part of a plant? Okay. Okay. Any other मैम आपने क्वेश्चन लिख लिया? नहीं, आपने लिखा मैम? क्या लिखा है मैम? Which surface reflects more? Which surface reflects More. more? That is regular surface, irregular surface, or both regular and irregular. and none. तीन. And none of them. None of them. अच्छा ठीक है. Okay. हाँ. Litmus is obtained from source. हम्म. Turmeric, phenolphthalein, lichen, juice of cantaloupe. अच्छा. Okay. नेक्स्ट है सर, which metal cut is your knife? ये पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम. That is the option. Okay. Which metal is found in? Which metal can be cut with Easily with knife. knife? Okay. सर आपने क्या लिखा है? Gas is the largest gland of our body. Liver, pituitary gland, thyroid gland, and adrenal. Okay. आपने क्या लिखा है मैम? More or less several developmental change during in the habit and the structure of an animal during their life cycle. Option में दिए हुए हैं parthenogenesis, emasculation, physiology, metamorphosis. Okay. So we are getting different types of stem and the options, right? Different types of stem and the options. Stem क्या है ये तो समझ गए आप? The sentence which you are using to ask a question, that is the stem. The options which you are giving out means other than answer, these are the distractors and one should be the correct answer. That is what I told. Okay sir. अब आप लोगों ने मैम्स आप लोगों ने जो stem लिखा है, सारे अपने अपने हिसाब से सभी लोगों ने बेस्ट लिखा है क्वेश्चन, बट हम लोग सीखते हैं कि हाउ टू राइट अ स्टेम. हम लोग जो स्टेम लिखते हैं वो कैसा होना चाहिए. सी द स्टेम मस्ट एक्सप्रेस द फुल प्रॉब्लम. पूरी बात जितनी आपको पूछनी है वो सब कुछ स्टेम में ही होना चाहिए. आपको ऑप्शंस में वैसा कुछ नहीं छोड़ना. ऑप्शंस बहुत कॉन्साइज होने चाहिए. अभी ऑप्शंस पे भी हम लोग जाएंगे. अभी पहले स्टेम. इट शुड एक्सप्रेस द फुल प्रॉब्लम. पुट ऑल रिलेवेंट मटेरियल इन द स्टेम. आपको जो कुछ पूछना है, जो रिलेवेंट मटेरियल जो रखना है वो स्टेम में रखिए. एलिमिनेट एक्सेसिव वर्डिंग. अब जिन लोगों ने कुछ बातें वैसी भी लिख दी हैं जो नहीं भी होता तो क्वेश्चन बन जाता फॉर देम. एलिमिनेट एक्सेसिव वर्डिंग एंड irrelevant information फ्रॉम द स्टेम. मैं वन थिंग यू कीप इन माइंड, मैं आपके किसी के क्वेश्चन को गलत नहीं कर रहा. मैं बस ये कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आपने जो लिखा है, आप उस अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ या जो मैंने बताया है उस पर आप अपने क्वेश्चन को जज करिए कि इफ यू आर हैविंग 10, कि मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन डिजाइन करने के लिए 10 नंबर मिलते हैं, क्वेश्चन डिजाइन करने के लिए 10 नंबर मिलते हैं, तो आप अपने आप को कितना नंबर देंगे? अभी नहीं, पूरी बातें जानने के बाद कि जो आपने डिजाइन किया है उसके बाद हम कितना नंबर उसको दे पाएंगे. ओके, so first is to express the full problem in the stem. Put all relevant material in the stem and eliminate excessive wording and irrelevant information from the stem. Irrelevant
जो नहीं होना चाहिए उस स्टेम में. ओके, नाउ डिजाइनिंग अल्टरनेटिव्स. ऑप्शंस, व्हाट यू टेल ऑप्शंस. जो हम लोग 4 ऑप्शंस रखने वाले हैं, व्हाट शुड बी देयर. गिव एट लीस्ट 4 चॉइसेस. ठीक है, कम से कम 4 चॉइसेस देने ही देने हैं. अच्छा लगता है, वो होते भी हैं. कई एक बार सीबीएसई ने, डीएवी, सीएई ने भी 3 ऑप्शंस वाले आंसर देने की शुरुआत की थी. 3 ऑप्शंस, लेकिन अब आपको 4 ऑप्शंस देने हैं. यूज कैपिटल लेटर्स टू डिनोट देम. ऑप्शंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से हो. ओके, देन आफ्टर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट द करेक्ट रेस्पॉन्स अमंग द चॉइसेस. ए बी 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 सी 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 सी. एक करंट पैटर्न की नहीं होता है कि एकदम करंट पैटर्न, वो एक डेफिनेट पैटर्न आपने चूज कर दिया और कहीं से बच्चों ने तुक्का लगा लिया तो सबके सब सही नहीं. बच्चे भी गेस करते हैं कि मैम हमेशा किस चीज पर प्रेशर डालती है, कौन से वर्ड्स पर. या बोलते हैं क्या सर, बहुत बोलते हैं, या सर ने जो एक बार क्वेश्चन डिजाइन किया उसमें मैक्सिमम ऑप्शंस ए थे. आंख बंद करके सुमन सर तो यही देते हैं, एक टिक कर दो, 20 में से 18 सही. ठीक है, सो यूज randomly distribute the correct response among the choices. कोई आपको पैटर्न फॉलो करने की जरूरत नहीं. ABCD nothing like this. रैंडम करिए. Avoid irrelevant clues. अब जो आंसर होना ही नहीं है सर, उस आंसर को ऑप्शन में रखिए ही नहीं, क्योंकि बच्चों ने तो वो 2, अगर आपने 4 डाले तो वो क्या कहते हैं उसको, डबल डिप वाला ऑप्शन नहीं हो. ये 2 तो होना ही नहीं है, तो है ही नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो फिर इस पे तो दिमाग ही मत लगाओ. अब 2 ही पर दिमाग लगाओ. तो वहां अगर बच्चे ने 2 ही पर दिमाग लगाया तो आपने क्या किया, यू हैम्पर्ड देयर क्रिटिकल थिंकिंग. आपने उसकी सोचने की शक्ति पहले से कम कर दी. डोंट डू सो. सर पिछली बार मैं बताई थी सर, तो क्वेश्चन लेने से देखे तो which abiotic component of forest is most important. फर्स्ट में एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट. ये हो सकता है सर. देखिए सर, आप खुद से टेस्ट करिए. अभी खुद से आपको टेस्ट करना है, मुझे आपको गलत और सही नहीं करना. मैं खुद आई थी उस तरह से. सर प्लीज, जिन्होंने लिखे हैं क्वेश्चन सारे सही हैं, इसमें तो कहीं से कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने जितने क्वेश्चन सुने हैं सब सही है. बट व्हाट वी नीड टू डू इज we need to learn how to frame a good question, not simple question. एक अच्छा क्वेश्चन जो हमारे पर्पस को फुलफिल कर सके, how to frame such question, that is our need. So क्वेश्चन फ्रेम करना, अभी तो मैंने बताया सर कि if I have to make 20 MCQs, 40 minutes are enough, है ना. लेकिन वो क्वेश्चन कितने सही होंगे ये भी तो देखना है. 40 मिनट्स में मैंने 20 लिख तो दिए, अब वो उस टॉपिक को, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए है कि नहीं है, या फिर वो बच्चों को ऐसे ही आ रहे हैं कि सर तो यही सब बात बोलते हैं, यही सब दिया है क्वेश्चन में, तो फिर लिख दो. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. ओके, अवॉइड इररिलेवेंट क्लूज. जो इररिलेवेंट क्लूज हैं वो दीजिए ही नहीं. डबल डिक का ऑप्शन उन्हें मत दीजिए. ठीक है, ओके. देन लिस्ट अल्टरनेटिव्स इन सेपरेट लाइंस. कई बार हम लोगों को क्या कहा जाता है, हम लोगों को भी कहा जाता है कि सर डोंट वेस्ट पेपर, ऐसा कुछ करिए ना कि ऑप्शन एक ही लाइन में आ जाए. ठीक है, कि एक पेज में 2 क्वेश्चंस निकल जाएं. आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं. इट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. आप क्वेश्चन लिखिए तो ऑप्शंस को सेपरेट लाइंस में डालिए. ठीक है, लिस्ट अल्टरनेटिव्स इन सेपरेट लाइंस सो दैट ऑल ऑप्शंस कैन बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड. मैम आपके लिए, डोंट गिव ऑल ऑफ एबव और नन ऑफ एबव. नन ऑफ द एबव and all of the above should not be given. Should not be given. बहुत रेयर केस जब हो, जब एकदम वैसा कुछ ऑप्शंस नहीं बन रहा हो, then only. बट ये हम लोग इसको अपना अधिकार ना समझें कि 2 ऑप्शंस हमने दे दिया, तीसरा none of the above, चौथा all of the above. No. भी दे सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, बोथ दे सकते हैं कि नहीं. ओके, so avoid such options, all of the above, none of the above. ऐसा बीपीएससी वाला जो एग्जाम सर बीपीएससी में तो एक और ऑप्शन था कि मोर देन 1 above. सर बीपीएससी देने वाले बच्चे 6, 7, 8 वाले नहीं होते ना. तो हम लोगों को 6, 7, 8 वाले बच्चों को पहले वहां तक पहुंचा तो ले सर, फिर तो बच्चे बीपीएससी में मोर देन 1 above भी होगा तो भी कर लेंगे. एक्चुअली मिडिल ग्रुप के बच्चों को प्रिपेयर करते हैं बोर्ड के लिए,
जो जिसमें उनको तो अपीयर होना है। ऑप्शन ये है कि उन्हें नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव पर वैसा ऑप्शन ही नहीं डालना हमें कि नन ऑफ द अबव पर बच्चे जाएं, क्योंकि वो जिस चीज पर जाएंगे, सपोज यू हैव गिवन 4 clues and all these 4 are relevant to the question. अब बच्चे की थिंकिंग देखिए, अब वो उन चारों प्रोसेसेस को जो आपने वर्ड्स लिखे हैं, पहले वो उन चारों के बारे में जानेगा कि ये क्या है, ऑप्शन 2 क्या है, ऑप्शन 3 क्या है, ऑप्शन 4 क्या है, क्या ये चारों इससे रिलेटेड है, ठीक है, क्या ये चारों जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके ऑप्शंस होने लायक हैं। तो ये थिंकिंग को प्रमोट करने वाली बात है। अब अगर आपने नन ऑफ द अबव वाले आंसर लिख दिए, अब बच्चे को एक ऑप्शन नहीं मिला, तो नन ऑफ द अबव इज द सिंपल आंसर। सो इन द मिडिल लेवल वी शुड अवॉइड, मैम ने कहा कि बहुत रेयर यूज कर सकते हैं आप, बट वी शुड नॉट यूज दिस। व्हेन पॉसिबल प्रेजेंट चॉइसेस इन सम लॉजिकल ऑर्डर। अब लॉजिकल ऑर्डर क्या हो गया, जैसे आपने सेल ऑर्गेनील्स का ऑप्शन देना है, तो सेल ऑर्गेनील्स के ऑप्शंस को एक लॉजिकल ऑर्डर में दीजिए कि ये, जैसे which of this is या which of the following is known as the powerhouse, whatsoever powerhouse of the cell, या और भी कुछ। तो जो आप ऑप्शंस लिखते हैं, it should be in a particular order। जैसे अगर सोशल साइंस वाले लिखेंगे, सपोज इट्स अ डेट, इट्स अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द डेट, द डेट शुड बी इन द क्रोनोलॉजी। बात समझ में आई? डेट शुड बी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो बच्चों को भी लगे कि टीचर ने उस क्वेश्चन को लिखने के लिए या ऑप्शंस को लिखने के लिए मेहनत की है। व्हेन पॉसिबल प्रेजेंट चॉइसेस इन सम लॉजिकल ऑर्डर, दैट लॉजिक शुड बी ऑफ योर चॉइस। लॉजिक कुछ भी हो सकता है, आपने कैसे रखना है वो आपके चॉइस का लॉजिक होगा, बट इट शुड बी लॉजिकल। चारों ऑप्शंस एक लॉजिक पर बेस्ड होने चाहिए। मेक अल्टरनेटिव्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम लेंथ। सेम लेंथ मतलब अगर आपने ऑप्शन एक सेंटेंस दिया है, तो चारों ऑप्शंस एक सेंटेंस ही होंगे, चौथा ऑप्शन एक वर्ड नहीं होगा, ठीक है। जो आपने सेंटेंसेस लिखे हैं एज एन ऑप्शन, ऑल द ऑप्शंस शुड बी ऑफ सेम लेंथ। इसका भी फायदा मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। अगर आपने नहीं लिखा ना, तो जो सबसे छोटा वाला होगा फिर वही ऑप्शन होगा आंसर। यही करते हैं हम लोग, इतने बड़े बड़े ऑप्शंस नहीं लिखने, ये छोटा है यही आंसर है, लो ढूंढ लो। 3 ऑप्शंस बड़े बड़े हैं और ये छोटा वाला आंसर है। नहीं सर, लेकिन मोस्टली जो है बड़े वाला ही ऑप्शन होता है। अच्छी बात है। मतलब ये ये छोटा छोटा एक बड़ा, तो वही होगा। बड़ा को भी गेस करता है। यहाँ आंसर आप जो होगा ना सर, वो गेस आपने करके 3 बड़े बड़े ऑप्शन दिए हैं सर, बहुत सारा एक छोटा आंसर दिया है, तो बच्चे को तो आपने कुछ ना कुछ डिफरेंस तो दिखाई दिया है। 3 छोटे छोटे आंसर दिए, एक बहुत बड़ा लिखा है, तो भी बच्चे को कुछ डिफरेंस तो आपने दे ही दिया है कि इस लाइन में कुछ खास बात है ना। It should not be there if you have to make the alternatives. These alternatives should be of approximate same length. आपको इन स्टेप से मेजर करने की जरूरत नहीं, approximately same होना चाहिए, कि बच्चे चारों को एक बार गौर से पढ़ें कि at least what are the options. Okay? Then keep all alternatives in a similar format. अगर सबको जो फॉर्मेट आपने दिया है वो सभी सिमिलर फॉर्मेट्स में हो। Use misconceptions or errors commonly made by students as the basis for incorrect responses. कई बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं हम लोगों को पढ़ाते हुए जहाँ बच्चे मिसकंसेप्शन कुछ फॉर्म कर लेते हैं, कुछ उनको गलत चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं वहाँ कि यहाँ बच्चा इसको डिफरेंशिएट कर पाएगा कि नहीं, ये भी एक आइडिया होगा उसको समझने का। सम सजेशंस देखिए सर, एक क्वेश्चन है, हाउ टू डिजाइन द स्टेम। क्वेश्चन है, प्रेजेंट अ डेफिनिट, एक्सप्लिसिट, सिंगुलर क्वेश्चन और प्रॉब्लम इन द स्टेम। स्टेम में हमेशा एक ही क्वेश्चन हो, क्योंकि ये एमसीक्यू है, चॉइसेस 4 हैं। क्वेश्चन में स्टेम जो आप लिख रहे हो वो चाहे जितना बड़ा हो, ये रिलेवेंट आइटम्स नहीं होंगे, क्वेश्चन एक ही होगा। जैसे कि सीधा क्वेश्चन एक बनाया है मैंने और लिखा हुआ है अनडिजायरेबल, मतलब ये क्वेश्चन नहीं चलेगा। क्या लिखा है मैंने, देखिए मैंने लिखा है मेटलर्जी इज डैश डन। अब ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस मैंने ऑलमोस्ट सब सेम लेंथ के रखे हैं सर, देखिए, लेकिन मैंने गलती क्या की है, क्या गलती की है, कैन यू गेस? अच्छा ठीक है, एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होना चाहिए, और आगे पढ़िए और आगे थोड़ा सोचिए।
कि क्या what mistake I committed in this. प्रॉब्लम को पहले देना चाहिए. Okay, anything else? सही आंसर पहुंच ही नहीं रहा, मतलब बेस्ट Anything else? एग्जैक्ट आंसर इज नॉट Exact answer is wrong. नहीं, नॉट देयर. अच्छा, exact answer is not there. क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन नहीं है सर. क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन नहीं. Sir, this question has more than one answer. Undesirable word is misleading. ओके, मतलब अब आपको समझ में आ गया मैंने अनडिजायरेबल क्यों लिखा है. सर अनडिजायरेबल क्यों लिखा है समझ में आ गया. यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था सर. हाउ कैन यू मेक इट डिजायरेबल, ये क्वेश्चन आपके पास है. हाउ कैन यू मेक इट करेक्ट, आपके हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए. जस्ट नोट इट डाउन सो दैट अदर कैन ऑल्सो राइट. लिख लीजिए सुमन सर कि इसका सही क्वेश्चन क्या बनना चाहिए. मैम लिखिए ना एक बार, ताकि दूसरों को भी पास करें तो समझ में आ जाए कि ऐसे क्वेश्चन अगर होंगे तो व्हाट शुड बी द करेक्ट वन. एक हो सकता है what is correct definition of metallurgy. What is correct definition of metallurgy? तो सर आंसर्स तो आपको बहुत बड़े मल्टीपल चॉइस नहीं होगा. Multiple choice लिख तो मल्टीपल चॉइस नहीं होगा. मेक इट मल्टीपल चॉइस बिकॉज़ वी आर हियर फॉर MCQs. I have given the hint, but nobody has listened. Yes, nobody has listened actually. Metallurgy तो can इसका be ऐसा defined होता है as सर, which option is the correct for the definition of metallurgy. No, sir. Which option? एक मिनट एनालिसिस के साथ हम लोग आगे बढ़े. सर अगेन यू से द क्वेश्चन. Which option is Correct for the definition of metallurgy. Is it the question? No. Which option is the definition of metallurgy? तो डायरेक्ट पूछ लीजिए. I Define think metallurgy. framing question is more difficult than saying. I think option को ना question में change कर दे और answer. The process, ma'am, listen to your name. Okay, Deepa ma'am. Deepa ma'am has written a question. The process of extraction of metal from its oxide is. इसका ऑप्शन दे देंगे metallurgy, frost processing method, दो तीन और ऑप्शन. नहीं, we don't have to change the metallurgy मेटलर्जी को मुझे स्टेम में रखना है. तो क्या क्वेश्चंस बनेंगे वो बताइए इनको मैम. Metallurgy used for लास्ट ऑप्शन को मैंने जो मेटलर्जी इज यूज्ड फॉर Metallurgy पर्पसेस. मेनी पर्पसेस आते हैं. तो फिर तो नहीं होगा. metallurgy can be defined as मैम A series of processes involved in extraction of pure metal from its मेटलर्जी तो आया ही न्यूज़ में मैम. आपका metallurgy can be defined as metallurgy is the process. अच्छा ओके ऑल द सजेशंस आर वेलकम. सी डिजायरेबल, क्या ये ऐसा बन सकता है? The series of processes involved in extraction of a pure metal from its ore is called. मैंने बोला था ये बात बोली थी, तो मैं कैसे कह देता कि हिंदू नहीं है. दीपक सर ने कहा था कि मेटलर्जी वर्ड होना चाहिए. स्टेम में मिसिंग है. From the ore. मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ. ओके जो मैम कह रहे हैं कि the process of extraction of metal from its ore is called. Yes, that is also okay. कहने का मतलब इसमें चेंज क्या दिखा मैम? चेंज ये दिखा कि मेटलर्जी इज, अगर एक क्वेश्चन लिखते हैं, सपोज इफ वी राइट मेटलर्जी इज, इट कैन बी डिफाइंड इन मेनी वेज. देयर इज नो सर्टेन वे कि आपने जो बोला वही एग्जैक्टली करेक्ट है. स्टूडेंट्स कैन आल्सो ऐड ऑन समथिंग जो कि वो करेक्ट हो सकता है, तो आप उसको ऑप्शंस में वैसे नहीं रख सकते. ये स्टेम डिजाइनिंग मैंने बताया आपको कि हाउ टू डिजाइन अ स्टेम. अभी मैंने आपको लिखा था, बताया था कि पुट ऑल द रिलेवेंट मटेरियल इन द स्टेम. सब कुछ डाला हुआ है स्टेम में, जिसका आंसर सिर्फ मेटलर्जी ही हो सकता है, दूसरा नहीं होगा. गॉट द पॉइंट? बढ़ते हैं आगे.
नेक्स्ट वन, आपको मैंने पॉइंट बताया था, एलिमिनेटिव एक्सेसिव और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेम। एक्सेसिव वर्डिंग को अवॉइड करने के लिए कहा था, बहुत ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है, या इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो उससे रिलेटेड नहीं है, इट मस्ट नॉट बी देयर इन द स्टेम। सी अनडिजायरेबल मैंने लिखा है कि एक कंडीशन है, वन डे when Rina was sitting in the class, she realized that she couldn't clearly see what the teacher was writing on the blackboard. She got worried about it. This could have happened due to a defect in vision call. क्या ये स्टेम सही है? केस बेस्ड तो टाइप ही अलग है, तो फिर why MCQs? केस बेस्ड तो टाइप ही अलग है, तो why MCQs? हम लोगों को सीखना MCQs है ना, और MCQs के स्टेम्स कैसे लिखने हैं वो सीखना है। तो MCQs का स्टेम अभी मैंने बताया कि it must be relevant, it must be concise, जिसमें कि वो चीजें लिखी हुई हो जो डायरेक्ट उसको उस इंफॉर्मेशन की तरफ ले जा रही हो जहां वो ऑप्शंस की तरफ जा सकता है। दिस इज द अनडिजायरेबल वे, मेक इट डिजायरेबल। बनाइए क्या हो सकता है इसका MCQ। It is not mentioned that she is sitting in front or she is sitting back side. But it is mentioned that she couldn't see clearly the blackboard what the teacher was writing, so definitely she was sitting on some, उसमें लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है। definitely she was sitting to some extent far, क्योंकि लिखा हुआ है she couldn't see, okay, बोर्ड के एकदम तो सामने होंगे नहीं। अब ये मैम कह रही कि ये कंडीशन हो सकता है कि लाइट का प्रॉब्लम हो, तो यही तो हमको में जनरली ये तो ये भी हो सकता है कि लाइट का प्रॉब्लम हो, तो आपने इंफॉर्मेशन कहां दिया क्वेश्चन में? नहीं दिया ना। लाइट की प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से उसको नहीं दिखा। थैंक यू इंदु मैम, एक नया चीज इंट्रोड्यूस करने के लिए कि लाइट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इस वजह से भी उसको नहीं दिखा, तो आपने तो करेक्ट इंफॉर्मेशन पूछा ही नहीं। तो शुरू से नहीं होगा, केवल रीना पे ये प्रॉब्लम नहीं होगा, लाइट का प्रॉब्लम तो पूरे क्लास के लिए होगा। ये तो वही तो सर उसमें लिखना है, वही तो बात है कि उसको लिखना कैसे है। स्टेट फ्रेम करना है लाइट प्रॉब्लम, नहीं स्टेट, No, that is what the question is. That is what the question is. reframe the question. Sir, that is what for we are here कि ये जो MCQs, ये जो स्टेम है अनडिजायरेबल है, लिखा तो है मैंने अनडिजायरेबल। You are to make it desirable. Leave the condition. Anyone is not able to see the far. मैम इसको एक स्टेम लिखिए, इसके लिए क्या लिख सकते हैं? You are to make the condition desirable. इस कंडीशन को, कंडीशन यही होगा, कंडीशन must not be changed, कंडीशन यही होगा, लेकिन आप कैसे लिख सकते हैं उसको? MCQ पूछना है तो क्या पूछेंगे? Seema is not able to see the blackboard because of. How many different reasons are एक बार there? बोलिए सर, क्या बोला आपने? How many किसी को किसी बहुत ज्यादा ये चेंज आपको ऑप्शन नहीं चेंज See listen to others also. It is also one of the way to See the distance. a good listener can be a good speaker. So try to listen others also. Sir आप एक बार फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? Rina cannot see distant object. Then she suffers from. What defect she is suffering from? Or ma'am. Amongst all the students, Seema is the only one who is not able to see through the blackboard. What Okay. condition? What eye defect? What eye defect she is suffering from? Yeah. अच्छा फिजिक्स वाले सर बाय द वे इसका आंसर होगा क्या सर? Myopia. बायोपिया। अच्छा ठीक है, ओके चलते हैं आगे। सी the desirable form. Is it desirable the inability of Rina to clearly read the writing on the class blackboard? would be due to the defect of the yes sir. Yes. Disability. वो जो हमने 4 लाइन में लिखा था वो छोटा हो गया। सर ने भी ऐसा ही कुछ बोला था कि रीना cannot see the distant object so इसमें ना एक और लाइन रहता है, Rina is not able to see distant object but able to see the far nearby object. हाँ ये और क्लेरिफाई कर दो, इसको और अच्छा बनाने के लिए Precise होगा. मैम मैंने लिखा क्या है ऊपर में? Suggestions. नहीं, मैंने सबसे ऊपर क्या लिखा है मैम? These are the suggestions. I am not the perfect one कि मैंने पूरा बना दिया तो यही होगा. These are the suggestions.
तो आप उसको और भी अच्छा बना सकते हैं सर, डेफिनेटली आप उसको और भी अच्छा बना सकते हैं। मैंने ये कब कहा कि आप यही सही होगा, ये नहीं मैंने बोला। आप उसको और भी अच्छा बना सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हाउ वी कैन मेक इट मोर इफेक्टिव। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। क्या क्या और हम लोगों को इग्नोर करना है? दिस इज अवॉइड यूजिंग नेगेटिवली स्टेटेड स्टेम्स। जिस स्टेम में नॉट या फिर नॉट बी द पार्ट ऑफ इस तरह की कुछ बातें हो तो अवॉइड यूजिंग दिस। स्टेम में कभी भी आपको नेगेटिव स्टेटमेंट्स मेंशन करने से बचना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए। यस्टरडे वन framing of message was there in my school. उसमें लिखा हुआ था कि don't stop believing in your ability। तो मैंने बोला सर don't stop believing in your ability से बढ़िया लिखिए believe in your ability। don't stop believing क्यों लिखना, सीधा लिखिए कि believe in your ability या have faith in your ability। so that is what I am telling, avoid using negatively stated stems। अगर आप यूज करते भी हैं, there are certain questions where you need to use this, कहीं कहीं आपको यूज करना ही पड़ेगा। it must be underlined और capitalized। आपने अभी सीटेट के क्वेश्चन में देखा था नोट NOT कैपिटल लिखा हुआ रहता है। अगर नहीं कैपिटल लिखा हुआ तो अंडरलाइन करा हुआ होगा कि ये नोट सेंटेंस को नोट पढ़ने के लिए नहीं है, ये सेंटेंस, ये नोट इस सेंटेंस को नेगेटिव मीनिंग देने के लिए है। तो देख लीजिए, which of the following is not a plant hormone। मैंने undesirable फॉर्मेट पूछा, लिखा है कि which of the following is not a plant hormone। इसी को अगर हम लोग डिजायरेबल बनाएं तो सिंपली which of the following is not कैपिटल है। NOT कैपिटल में तो none of these भी हो जाता है। none of these तो ये सर हमने बना लिया है, कहीं लिखा हुआ NOT means none of these only। लेकिन उसको बोल्ड करना ज्यादा अच्छा है। हाँ, मतलब आप उसको सेपरेट कर दीजिए, स्टेम अलग से दिखे। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग कि वो मतलब जो स्टेम आपने बनाया है ना उसमें वो नोट अलग से दिखे कि ये नोट है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग पढ़ते समय उस नोट को ही इग्नोर कर जाते हैं कि वो नोट भी था उसमें, बाद में पता चलता है कि इसका आंसर तो कुछ और होना था, क्वेश्चन तो नोट था, नोट आपने देखा ही नहीं। सो मेक दिस नोट बोल्ड, कैपिटल, underline means different, make it different from the whole stem। whole stem से ये थोड़ा अलग दिखना चाहिए जिससे बच्चों को या हम लोगों को भी ये पता चले कि एक नोट भी है वहां पर। ओके, नेक्स्ट वन, मेक द अल्टरनेटिव्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मिलते जुलते, है ना। अनडिजायरेबल देखिए क्या लिखा है मैंने, द डेली मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मिल्क that a 10 years old child should drink is 1 to 2 glasses, 3 to 4 glasses, 2 to 3 glasses, at least 4 glasses। पहले ऊपर पढ़ लीजिए, make the alternatives mutually exclusive। ये undesirable फॉर्मेट है, what is displayed on the board, make it desirable। क्या होगा इसका desirable क्वेश्चन? A 10 years old child should drink at least ऑप्शंस ये सब क्वेश्चन, वो हेडलाइन जो है ना वो ऑप्शंस के लिए ही है, स्टेम के लिए कम है, मतलब स्टेम भी आप चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेक द अल्टरनेटिव्स के लिए ही वो ऑप्शन है, मतलब ये लाइन है मैम। ml या फिर इस तरह ये में दिया जाए। हाँ, तो ग्लास का साइज के बाद तीसरा वाला होगा 2 3, बट ग्लासेस का साइज तो दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन 2 1 2 के बाद 2 3 होगा, 2 3 के बाद 3 4 होगा। अच्छा, इसका डिजायरेबल मैंने बनाया नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, more than that, ऐसे। At the same time, your measurement of glasses not given। ग्लासेस की मेजरमेंट भी नहीं होती, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्लास इतने में होंगे, इतना भी होगा। हाँ, तो इट शुड हैव अ प्रॉपर लिमिट, उसमें एक मेजरमेंट होना चाहिए, वो ज्यादा बेटर होगा। ओके, नेक्स्ट वन, अगेन इट इज अनडिजायरेबल। Include in the stem any words that might otherwise be repeated in each alternative। अगर एक ही वर्ड अल्टरनेटिव में बार बार रिपीट हो रहा है तो बेटर कि यू एडजस्ट इट इन द स्टेम। आपको बार बार अल्टरनेटिव में उसको डालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस में डालने की जरूरत नहीं है। सी अनडिजायरेबल फॉर्मेट मैंने क्या लिखा है, रस्टिंग कैन नॉट टेक प्लेस इन
presence of oxygen, presence of carbon dioxide, presence of water vapor, presence of water. Presence of सब में आ रहा है. So better it should be mentioned in the state. Presence of. नहीं. तो इस बात का ध्यान रखें. हाँ सर. Okay. Now see this. Do not use double negative in a scale. Double negative. Not. See, which of the following is not the incorrect name? Double negative. Not भी है, incorrect भी है. So it should not be there in the scale. Which of the following is not the incorrect name of acetic acid? ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. यहाँ बच्चे का दिमाग हम कंफ्यूज कर रहे हैं कि whether he should think about the incorrect or he should think about the not. और नोट मैंने हाईलाइट भी नहीं किया है, तो बच्चा हो सकता है कि वो मिस कर जाए which of the following is the incorrect name of acetic acid. So ये इसका डिजायरेबल फॉर्मेट ऐसा होगा. Which of the following statement is not correct? मैंने फिर यहाँ क्या गलती किया है? नोट में क्या गलती किया है? देखिए कैपिटल नहीं लिखा है. एक और अनडिजायरेबल फॉर्मेट. मेक अल्टरनेटिव्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम लेंथ. मैंने बताया था आपको कि अल्टरनेटिव्स मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ. अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ तक बनाया, इसको यहाँ तक रखा है, इसको यहाँ तक रखा है, इसको यहाँ तक रखा है. दिस इज अनडिजायरेबल. ऑलवेज ट्राई टू सेट द ऑप्शंस approximately of same length. Alternatives should not be vague. Alternatives जो रखेंगे, the students must have the idea of such things. वैसी कुछ बातें नहीं हो जो क्लियर नहीं हो उनके दिमाग में. वैसा कुछ नहीं होना चाहिए alternatives रखते समय. Okay. Now how can we motivate the students to answer? ये भी तो हमारा ही रोल है. क्वेश्चन तो आपने बना लिया. But if they are unable to answer, the assessment is 0. In physics, work done is 0 if there is no displacement. So if your students' academic graph is not this to this, work done is 0. The purpose is to make their graph. The purpose is to make their academic performance graph this to this, right? In every class. So the tips to motivate the students to answer. बच्चों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से बतानी है कि read the question carefully. पहले क्वेश्चन पढ़ो. ये बात बच्चों को बार बार बताइए कि क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो. Because CBSE as well as DAV CAE it provides 15 minutes for reading the question paper only. 15 minutes होता है ना सर? जब हम लोग CBSE की एग्जाम ड्यूटी करते हैं 15 मिनट्स 10:15 to 10:30 दिस इज ओनली टू रीड. उसी तरह से CTET या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम sometime is given to read the question paper. So tell them to read the questions carefully. Then after answer the questions without looking at the options. अल्बर्ट आइंस्टीन के फॉर्मूले पे जाओ. तुम्हारे हिसाब से ऑप्शंस को अभी छुपा कर रखो और पहले सोचो कि इसका आंसर होगा क्या. नहीं, अभी आपने देखा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला कि अगर मुझे 1 घंटे मिले एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो मैं 55 मिनट्स ये सोचूंगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व किस क्वेश्चन से होगा और उसके बाद 5 मिनट में उसका आंसर ढूंढ लूंगा. तो आंसर द क्वेश्चन विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शन, नॉट द फाइनल आंसर, अटेम्प्टिंग आंसर. ठीक है. एलिमिनेट द इनकरेक्ट ऑप्शन. डबल डिप. इनकरेक्ट ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं उसको एलिमिनेट करिए. आंसर ऑल द क्वेश्चंस. जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं अगर इंस्ट्रक्शन है कि आंसर ऑल द क्वेश्चंस. देन मैनेज योर टाइम. जो टाइम लिमिट है, जितना समय उसको मिला है उसको पता होना चाहिए. ठीक है. और इस तरीके से हम लोग MCQs फॉर्म कर सकते हैं और बच्चों को MCQs के आंसर करने के लिए टिप्स दे सकते हैं. ठीक है. अब आप जो क्वेश्चन बनाएंगे या जो MCQs बनेंगे या हम लोगों को जो ड्यूटी मिलेगी टू फॉर्म द MCQs, it must be of a proper क्वालिटी उसकी एक होनी चाहिए कि हमारा क्वेश्चन कहीं भी क्वेश्चनेबल ना हो. है ना सर? क्वेश्चन पेपर क्वेश्चनेबल नहीं हो कि जो हमने MCQs डिजाइन किए हैं it should be of good quality question which should fulfill all the purpose for what I have set the question. Okay, thanks for your patience.
Good session, sir. Okay. Congratulations. And one Next more is thing, a- sir, कि questions जो होते हैं ना, sometimes we frame the question, we left so many topics from that chapter. ऐसा होना चाहिए which cover all the topics from that chapter. Any suggestions from your side?